کسی کو اعتراض ہے کہ جی ان کا نکاح مولانا طارق جمیل صاحب نے پڑھایا، تو کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ کا لہنگا کروڑوں کا تھا اور 40 کلو تولہ سونا پہنا ہوا تھا انہوں نے. کچھ اشعار ہو جائیں ایسے. ہاں مزہ نہیں آئے. مجھے ایک ہی شعر آتا ہے اور باقی سارے شعر جو ہیں وہ اس ٹائم سو رہے ہیں. آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو، میری زندگی ہے تو. انہوں نے کہا میری زندگی ہے تو میں جو ہوں ان کو یہی کہوں گا کہ ہاں تو بھی زندگی ہے میری. پوری دھومیں مچ گئی، ٹاپ ٹرینڈ پہ آ گئے ہیں آپ لوگ. اب مجھے یہ بتائیں کہ شادی کا کیا پلان ہے اور شادی پہ کیا دھماکہ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کب ہے شادی؟ ابھی تو یہ ٹریلر تھا. اچھا پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست. اب ہاتھ پکڑ لے. میں چاہتا ہوں کہ ہاتھ پکڑ کے نا اب تھوڑا سا آپ لوگوں کو ویئرڈ فیل ہو رہا ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں نکاح ایک ایسا رشتہ ہے، اس کے بعد کوئی اس پہ ایلیگیشن نہیں لگا سکتا. ہاتھ پکڑے دونوں. نہیں ہاتھ ہم پکڑ لیتے ہیں بالکل. آئے ہائے ہائے کیا پیارے لگ رہے. دوسرے کا نام گندا کر کے تم نہ تو فیم لے سکتے ہو، نہ تو اس جتنے مشہور ہو سکتے ہو، نہ تو کامیاب ہو سکتے ہو. پاکستان میں دو ہی چیزیں چلتی ہیں، ایک مریم نواز نے کیا کیا، دوسرا ڈاکٹر نبیہ علی خان نے کیا کہہ دیا. السلام علیکم جی، میں ہوں علی بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این سی گلوبل. میرے ساتھ سوشل میڈیا کی سینسیشن اور وائرل ترین جوڑا جو کہ میرے بہت ہی پیارے بہن بھائی ہیں، حارث کھوکھر اور ڈاکٹر نبیہ علی خان. سوشل میڈیا پہ ویسے تو بہت زیادہ نام ہے، مشہور ہیں، وائرل ہیں، اور آج کل تو خاص طور پہ سوشل میڈیا کی زینت ہے کیونکہ انہوں نے نکاح کر کے پوری دنیا کو ٹینشن ڈال دیا ہے. کسی کو اعتراض ہے کہ جی ان کا نکاح مولانا طارق جمیل صاحب نے پڑھایا، تو کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ کا لہنگا کروڑوں کا تھا اور 40 کلو تولہ سونا پہنا ہوا تھا انہوں نے. اور حارث بھائی پہ بھی کافی باتیں کی کہ یہ تو ایک خوشی کا موقع تھا، لیکن اس کو تنقید میں بدل کے، اس کو کنٹروورسی بنا کے، اس کی چھوٹی سی بات پکڑ کے، مطلب عام طور پہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی 40 کلو کا ہے. تو عام کہنا تولا ہی ہوگا، ایک اندھے بہرے گونگے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے ارے بندہ بات کیا کرنا چاہ رہا ہے. تو اس کو کنٹروورسیز بنا دی ہیں. چلیں ان سے تھوڑی سی بات کر کے ان چیزوں کو کلیئر کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حارث بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. حارث بھائی ہمیشہ کی طرح بہت ساری مبارکباد، اللہ پاک خوش رکھے آپ کو، اور ایک خوبصورت بندھن میں بن چکے ہیں آپ دونوں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی، اور اس کی دل سے بہت خوشی ہے، اور ہمارا ایک بڑی ہی طویل مدت سے ساتھ بھی ہے اس چیز کو لے کے، اور ایک بہت ہی گڈ نیوز ہے ہم سب کے لیے انشاءاللہ. اچھا شادی پہ سب سے پہلے آپ پہ میں ایک بات کروں گا کہ آپ کی نانی اماں کی طبیعت خراب تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب خاندان میں اپنے بچے کی شادی ہو رہی ہو تو کوئی بڑا شرکت نہ کر پائے تو وہ چاہتا ہوتا ہے کہ یار دور جدید ہو گئے، مجھے ویڈیو کال کر کے تم لائیو مناظر دکھا دو. تو آپ اپنی نانی اماں، بیمار نانی اماں کو وہ ویڈیو پہ لائیو مناظر دکھا رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ یار ان کو بھی اپنی ویڈیو بنانے کی پڑی ہوئی ہے. لوگ جو ہے نا وہ بغیر انویسٹیگیشن کرنے کے بغیر جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، اور میرے خیال سے کسی میں کیڑے نکالنا یا کسی پہ کیچڑ اچھالنا، کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کی کردار کشی کرنا، کسی کی عزت اچھالنا، یہ کوئی صحافت نہیں ہے. یہ کوئی جو ہے، میں ان کو انفلوئنسر نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں اور تنقید برائے اصلاح کریں. تنقید برائے اصلاح یہ ہوتی ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کریں، اور اگر جو ہے وہ پاکستان میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ پاکستان کو نقصان دے رہی ہے اس پر بات کریں، جو کہ ریاست کو نقصان دے رہی ہے اس پر بات کریں، جو کہ ظلم کے نظام کو بڑھا رہی ہے اس پہ بات کریں، مظلوم کو انصاف نہیں مل رہا اس پہ بات کریں. لیکن آپ جو ہے وہ فضول قسم کی چیزوں پر جو ہے وہ تنقید کرنے بیٹھ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ اگر ان کے پاس جو ہے وہ ڈگری نہیں ہے یا ایجوکیشن نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو یہ کسی بھی بندے کو پکڑ کے جو فیمس ہے اس کی تصویر لگا کے اور اس کے بارے میں بات کر کے اور اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی کر کے ویوز تو لے لیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں جو ہے ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. بعد میں جو ہے ان کو گلٹ رہے گا ساری زندگی کہ میں نے یہ کیا حرکت کی. وہ جو پیسے ان کے پاس آئیں گے وہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ دو گنا ہو کر نکل جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ ابھی جو تبصرے کر رہے ہیں، جو تجزیے کر رہے ہیں، ان کے پاس کیا لائسنس ہے؟ کسی ادارے میں بیٹھے ہیں، یہ کسی اخبار میں بیٹھے ہیں، یہ کسی رجسٹرڈ جو ہے وہ الیکٹرانک چینل میں بیٹھے ہیں، کسی بڑے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں؟ نہیں، یہ صحافی نہیں ہے. میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں. اگر کوئی ایسی بات تھی تو سارے صحافی پاکستان کے تقریباً مجھے جانتے ہیں، مجھے کال کرتے، مجھ سے پوچھتے، میں ان کو بتاتا. وہ جو ہے اخبار میں کالم لکھتے، وہ پروگرام کرتے، پھر سمجھ بھی آتی تھی. لیکن یہ خود ہی اپنے ہی دماغ سے سوچ کے جو ہے وہ بات کو کر دینا اور پھر اس پہ ویوز لے لینا، پھر نیگیٹیوٹی کرنا، یہ جو ہے وہ میرے خیال سے
एक फजूल सी हरकत है। मौलाना तारिक जमील साहब एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, आखिर वो आप उनके साथ बैठे हुए हैं, वो आपका निकाह पढ़ा रहे हैं और उस पर भी तनकीद और बातें, मतलब निकाह तो सुन्नत है और एक सुन्नत अमल है, उसका अपने आप में एप्रिशिएट करना चाहिए ना यार। ये देखें, अगर एक सेलिब्रिटी है, उसका निकाह हो रहा है और सुन्नत रसूल है, नेक काम है, तो उसको एप्रिशिएट करो, वीलॉग्स बनाओ, उसको एप्रिशिएट करो। इस वक्त सहाफियों का, इन्फ्लुएंसर्स का काम ये था कि नौजवान नस्ल को पैगाम दें और रोल मॉडल बनाएं डॉक्टर नबिहा को, साथ मुझे, कि जी निकाह को आम करो। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के लड़के जिनके जो है वो चक्कर होते हैं, ठीक है, हमने यही पैगाम देना, हम चाहते थे कि ये पैगाम जाए दुनिया तक, पाकिस्तान तक, मुसलमानों तक। और मेरे ख्याल से इस पैगाम को फैलाना था सहाफियों ने, इन्फ्लुएंसर्स ने, राइटर्स ने, लेकिन वो किसी और तरफ निकल गए। नौजवान नस्ल को एक ट्रैक पे लाते और उनको कहते कि जी देखें, ये जो है वो अगर पाकिस्तान की जो है वो सेलिब्रिटी हैं या इनको देखा जाता है, इनके व्यूज हैं, इनके फॉलोअर्स हैं, इन्होंने ये काम किया तो आप भी ये करें, ठीक है। आप जो है, आपका अगर दोस्ती होती है, रिश्ता बनता है, तो आप उसमें शादी करें, निकाह करें। लेकिन इन्होंने जो है वो कहीं और ही घुमा दी स्टोरी। बिल्कुल ऐसे ही है। और मौलाना तारिक जमील जो है वो आपको पता है, वो तो तबलीगी जमात में कितने हजारों लाखों मुसलमानों को जो है वो तबलीग करते हैं और कितने गैर मुस्लिमों को मुसलमान कर चुके हैं। तो वो तो एक, यानी कि मैं कहता हूं कि फील क्या चीज के साथ, वो बड़ी हस्ती हैं, एक बड़ी हस्ती है, एक रूहानियत वाली फीलिंग है कि आप, अगर आपके साथ कोई ईवल एनर्जी है या कोई ईवल चीजें हैं, तो आप उनको देख के, उनकी आंखों में जब वो आपको देखते हैं और उनकी जो मुस्कुराहट है ना, तो वो आपके ऊपर से सब कुछ जो है, प्यार है, लव है, सब कुछ उतर जाता है और आप हल्के फुल्के हो जाते हैं और आपका दिल खुश हो जाता है, आपके सारे मसले हल हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप भी, जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया की जीनत है, बहुत से लोग आपकी साइकोलॉजी से मुतासिर हैं, आपसे अपने ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, सेशंस लेते हैं, बहुत से घर तबाह होने जा रहे थे, औरतें अपने शोहरों को नापसंद करना शुरू कर रही थी, डिवोर्सेस ले रही थी, आपने इसमें बड़ा एक अहम किरदार अदा किया, उनकी काउंसलिंग की, कपल काउंसलिंग की, एक दूसरे के दिल में आपने सालसी का किरदार अदा किया कि यार ये किसी तरीके आपस में अच्छी जिंदगी गुजारे। फाइनली माशाल्लाह आपका निकाह हो गया है और आप एक वेल एजुकेटेड, वेल नाउन एक पर्सनालिटी है, जाहिर सी बात है। आपने अगर इंटरव्यू के दौरान कह दिया कि मैंने 40 किलो का पहना हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि इतनी कंट्रोवर्सी, आपका निकाह जैसा इतना बड़ा अमल हो रहा है, वो एक तरफ, और आपने किलो कह दिया, बस किलो पे बात चल रही है। पाकिस्तान में दो ही चीजें चलती हैं, एक मरियम नवाज ने क्या किया, दूसरा डॉक्टर नबिहा अली खान ने क्या कह दिया, बस। इसके अलावा कोई तीसरी चीज इनको नहीं पता चलती। ये औरतों पर बातें करने वाली कौम, जिनका ये मसला नहीं है कि किसी के घर में खाने को है नहीं है, मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, मुल्क कहीं डिफॉल्ट की तरफ तो नहीं जा रहा, मईशत किधर जा रही है, एनवायरनमेंट कितनी हमारी खराब हो चुकी है, यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लाहौर शहर का 470 से जो है वो ऊपर जा चुका है, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की तरफ जो है वो जा रहे हैं। इनको ये सारी बातें भूल के इनको क्या याद रहे कि डॉक्टर नबिहा का करोड़ों का लहंगा है, ये किलो की ज्वेलरी है, भाई किलो की है, तोले की है। अगर ये समझदार लोग होते तो इन्हें समझ आ जानी चाहिए थी कि भाई किलो उन्होंने वैसे ही बोला है। मैं अक्सर औकात पता क्या कहती हूँ, ये इतने किलो की चीजें जो मेरे ऊपर लाद दी है ना, ये मुझसे नहीं हो रही, मतलब ये मेरा एक तकलाम रूटीन की बात है, तो मैंने उस पे ऐसे ही मजाक में कह दिया, वजनी हो तो ये कह देती है इतने किलो का, मैं इतने किलो का सूट है, ये मुझसे नहीं पहना जा रहा। वो फिर सही, वो फिर सही कहा है ना उन्होंने, एक तो ये पढ़े लिखे भी नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। यही तो समझ जानी चाहिए 40 किलो का कोई सोना का सेट पहन सकता है। और 69 चैनल्स को अगर कहा है 35 से 40 तोले और एक को कह दिया अगर स्लिप ऑफ टंग से, तो वो एक चैनल वाली पकड़ लिया, वो 69 चैनल्स पे जाके रिसर्च करो ना। अच्छा, अगर तुम इन्वेस्टिगेटिव सारे अच्छे काम एक साइड पे डाल देते हैं, वो जो एक बात कोई मुंह से जो है वो ऐसी निकल जाए, उसको वायरल करने के लिए जो है हमारी मुखालिफ पार्टी जो है वो जोर लगा देती है। अच्छा। ये हमारा ना काम सियासी बनता जा रहा है। यहाँ पे ना जो सहाफत है ना वो सियासत में बदलती जा रही है, और सहाफी अब सहाफी नहीं रहा। अब डिजिटल दौर जब से आया ना, तब से ये डिजिटल दहशतगर्दी स्टार्ट हो गई है। और ये डिजिटल दहशतगर्द हैं चंद लोग जो कि दूसरों की क्रेडिबिलिटी को गंदा करने के लिए उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, और एक मशहूर आदमी की क्रेडिबिलिटी को गंदा करने के लिए उसकी छोटी सी बात पकड़ के जो है वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। और दूसरे का नाम गंदा करके तुम ना तो फेम ले सकते हो, हाँ, ना तो उस जितने मशहूर हो सकते हो, ना तो कामयाब हो सकते हो, बल्कि तुम जो हो वो एक घड़े में
तुम कभी बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, और 40 किलो का हार था या नहीं था, लेकिन 40 किलो की हथकड़ी लगवाने की सलाहियत रखती हूँ मैं। इसका मतलब है कि आपने कोई इस पे ग्राउंड रूट पे वर्किंग कर ली है। बस आपको पता चल जाएगा बहुत जल्द ये डिजिटल दहशत गर्दी कैसे बंद होती है और ये दहशत गर्द कैसे जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है, इंशाल्लाह बहुत जल्द। चलिए, ये तो ये नेगेटिव लोगों को छोड़ते हैं, इतना खुशी का मौका आप लोगों का निकाह हुआ है, मेरे साथ नहीं, हम इसमें खुश रहते हैं। हम ये जो हमारे साथ पंगे लेते हैं ना, इनके घर वाले नहीं सुनते, दूसरे का सालन मांग रहे तो मना कर देते, पड़ा भी हो तो यहाँ तक कि वो खराब हो जाता है। वो जिनका काम है वो जिनका काम है वो खुद ही कर लेंगे, हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, और बड़े प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। अच्छा मुझे ये बताइए, हम इत्मीनान है, हमारी शक्ल देखे ना, सुकून है ना हमारी शक्ल, हमें पता है हम गलत नहीं है, हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं की, किसी का हक नहीं मारा, हमने किसी के जो है वो पैसे नहीं खाए, हमने किसी पर जुल्म नहीं किया। तो देखें हमारा चेहरा, देखें कि हम खुश हैं, हमारी आंखें देखें, हम पुरसकून हैं और हम मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि हमें नींद आती है, लेटते साथ ही जो है 2 मिनट बाद नींद आ जाती है, हमें कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आगे आप लोगों ने माशाल्लाह निकाह कर लिया और सोशल मीडिया पे पूरी धुमें मच गई, टॉप ट्रेंड पे आ गए हैं आप लोग। अब मुझे ये बताएं कि शादी का क्या प्लान है और शादी पे क्या धमाका करने जा रहे हैं? आप कब है शादी? अभी तो ये ट्रेलर था, अच्छा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो ये हमारे जो इवेंट्स हैं वो अभी इंशाल्लाह हम उसके लिए जो है वो आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी, पैसे का कोई ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब बड़ी इज्जत एहतराम के साथ, बड़े तरीके के साथ, लेकिन न्यू ट्रेंड के साथ। दोस्त मेरे, क्योंकि यारी दोस्ती बहुत है मेरी, मैं बहुत सोशल रहा हूँ बचपन से, तल्लक बनाया है, सारी जिंदगी तल्लुक बेस पे लोगों के काम किए हैं, बिल्कुल सारी जिंदगी आसानियां बांटी है, खैर बांटी है, लोगों के काम किए हैं, तल्लुक बनाए हैं, और 25 साल पुराने तल्लुक हैं जो आज भी कायम है। और क्योंकि खोखर बरादरी है, खानदान बड़ा है, सियासी है, तो लोग आएंगे, ज्यादा आएंगे, मेहमान नवाजी हम करेंगे, इस्लाम में मेहमान नवाजी है। और आप हैं मेहमान नवाज? हाँ बिल्कुल, आप हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि देखिए हमेशा मोहब्बत, तो वो अगर दूल्हे में पैसे लुटाएंगे तो अब ये तो फिर हम बुरे बन जाएंगे, तो बुरे बन जाएंगे हम। पैसे वो लुटाएंगे, बुरे हम बन जाएंगे। आप यानी हमने तो आज तक किसी शादी पर नहीं लुटाए, हमने तो आज तक जो है वो अफलास नहीं की, हमने आज तक जो है वो ऐसी कोई काम नहीं किया। मुझे सारे जानते हैं, जर्नलिस्ट यानी कि जो एक एसोसिएशन चला रहे हैं 5 साल से, ये सहाफत एक मोतबर पेश है, इनको सब पता होता है, ग्राउंड लेवल पे अंदर खाते हर चीज, हर इंसान का, हर इदारे का इनको पता होता है, ये कैसा है, ये कैसा है। तो मेरा भी सबको पता है, मेरे खानदान का भी पता है, मेरी क्रेडिबिलिटी का भी पता है। तो अगर कोई और आके, मेरा कजन या मेरा कोई दोस्त मुझे बैठा के मेरे ऊपर से पैसे वार के जो है सदका करता है, उधर उठाते हैं लोग, तो फिर वो हमारी गलती नहीं, वो आपकी गलती नहीं आएगी, ना आएगी, क्योंकि बड़े लोगों ने बड़ा पैसा जाया किया, सब खत्म हो गया, इसमें कोई कंट्रोवर्सी ना बनाना। आप इनको प्यार मोहब्बत से अच्छे कमेंट्स करें और बेस्ट विशेस दें। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा खूबसूरत वक्त है और बड़ा आपके हस्बैंड आपके साथ, अब तो आप मिसेस हारिस खोकर हैं, तो इनके लिए कोई मोहब्बत भरे अल्फाजों में कुछ शेर हो जाए या कुछ चंद लाइन्स हो जाए, कुछ गुनगुना दें। गुनगुना तो नहीं सकती, बस अब मैं इतने सारे गाने गा लिए हैं, अब मुझे याद कोई नहीं आ रहा। बस फिर कुछ अशार हो जाए, ऐसे हाँ, मजा नहीं आएगा। मुझे एक ही शेर आता है और बाकी सारे शेर जो हैं वो इस टाइम सो रहे हैं। आगे में सो रहे हैं। एक शेर जो शेर आता है वो जो शेर आया है वो मैं कह देती हूँ कि आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है। अच्छा हारिस भाई, देखें आपकी वाइफ की तरफ से, हमारी भाभी हैं, बहन भी हैं, अब आपकी वाइफ हैं, तो अब इनके लिए कुछ दिल से क्या अल्फाज दिख रहे हैं? बड़ी खूबसूरत बातें कही उन्होंने आपके लिए। उन्होंने कहा मेरी जिंदगी है तू, तो मैं जो हूँ उनको यही कहूंगा कि हाँ तू भी जिंदगी है मेरी। अब हाथ पकड़ ले, मैं चाहता हूँ कि हाथ पकड़ के ना, अब थोड़ा सा आप लोगों को वियर्ड फील हो रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि देखिए निकाह एक ऐसा रिश्ता है, उसके बाद कोई इस पे एलिगेशन नहीं लगा सकता। हाथ पकड़े दोनों, नहीं हाथ हम पकड़ लेते हैं, बिल्कुल। आए हाय हाय, पकड़ लेते हैं, क्या प्यारे लग रहे। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना पकड़ लिया है हमेशा के लिए। हाँ ये बिल्कुल, अब निकाह ने बांध दिए इन दोनों को। हाँ। और ये निकाह रिश्ता ही बहुत खूबसूरत है, करीब वो दूर हो, इंसान को हमेशा जोड़ के रखता है, साथ रखता है, और इतना खूबसूरत जोड़ा है यार। और इनके लिए बस अच्छे कमेंट्स करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, और अपनी कीमती रास्ते जरूर लगा के दें, और एक बुरे कमेंट ना किया करें, नहीं तो आपको हम उठा के फेंक देंगे, अल्लाह ने के मान।
مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے GNC گلوبل کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔